Welcome students, you are watching my YouTube channel Breathing Physics and I am your physics professor PD sir. So today we are come with next concept of vector series. This is part 9. Till part 8 we have covered some basic concepts, some basic laws as well. So this is part 9 of vector series. In this part we are going to see how to subtract two vector. Till now we have seen how to add two vectors by triangle law, by parallelogram law, so or by polygon law. In a triangle law we just uses two vector to add. In a parallelogram law also same. But if you want to add multiple number of vectors, at that time you use polygon law. Okay, so triangle law में हम दो वेक्टर को ऐड किया. Similarly in a parallelogram law also we added two vectors. अगर ज़्यादा vectors को ऐड करना है तो हम polygon law use करते हैं, ठीक है. So in lecture we are going to see how to subtract two vector. So before starting our lecture, I just want to announce some name from previous quiz, and they are Sakshi Nirmale, Sanika Kadam, Priyanka Mari, Vasudha Desai, and Vrashali Sutar. Okay, keep it up, guys. In this lecture we have quiz at the end, so attend the lecture and give the answer of quiz in a comment box. Okay, so let us start our today's lecture, that is subtraction of vector. Okay, so let's say we have vector a bar. We have vector a bar and vector b bar. हमारे पास दो वेक्टर्स है, vector a bar and b bar. So during addition we take resultant r bar as a bar plus b bar. It is very simple. Okay, basic. If you want to subtract these two vectors, then what will you do? Okay, so subtraction means a bar minus b bar. Okay, it has its own resultant as well. Let's say it is a r1. Okay, a bar minus b bar. Definitely a bar plus b bar has a different resultant as well as a bar minus b bar has a different resultant. That means a bar plus b bar का जो भी resultant रहेगा वो अलग रहेगा और a bar minus b bar का जो resultant रहेगा वो अलग रहेगा. So you can represent this a bar minus b bar as r1 bar is equal to a bar plus minus b bar. Are you getting this? यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को भी हम एडिशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. a बार माइनस b बार को हम a बार प्लस ऑफ माइनस b बार भी लिख सकते हैं. सो अगर b बार हमारा एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज आवर b बार वेक्टर, दिस इज आवर b बार वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड लेट्स से 5 न्यूटन. सो बेसिकली इट इज अ फोर्स वेक्टर. So how to represent minus b bar? Just think on that by pausing the video. Just think on that. Okay. So here from this negative sign, you can definitely analyze that this negative sign indicates direction. Direction. So if a b bar has this direction, whatever it is, east to west, whatever it is, then definitely minus b bar we can represent like this. This is our minus b bar. This is our minus b bar, and it has same magnitude. It has the same magnitude. Okay, that means b bar vector and minus b bar vector has the same magnitude. There is a no change in the magnitude. यानी कि b bar vector या फिर minus b bar vector का जो magnitude रहेगा वो same रहेगा. Negative sign बस यही indicate करता है कि अगर b bar आपका east में जा रहा है तो minus b bar east के exactly opposite 180 डिग्री में जाएगा. Okay, that's it. तो आपको ये तो पता चल गया कि हमें a bar minus b bar को a bar plus minus b bar में किस तरह लिखना है. ये रहा a bar plus और minus b bar में किस तरह लिखना है. Okay, तो ये तो हो गया चलो थ्योरेटिकल. अब हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल यूज कैसा है. और जिस तरह हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट निकाला था जिसका वैल्यू आई थिंक r इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, उसी तरह सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा और उसका डायरेक्शन क्या आएगा ये भी देखना जरूरी है. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन. वी विल सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. Okay, now we will see how to find a magnitude of subtraction of two vector as well as उसका डायरेक्शन भी. मतलब subtraction का जो resultant vector रहेगा उसका magnitude किस तरह ढूंढना है और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा. So we will use that parallelogram we have seen in previous lecture. Let's say we have vector a bar here. This is our a bar vector and b bar. Let's say this is a bar vector, this is our b bar vector. Okay, there is no problem.
So according to parallelogram, the resultant will be this vector. This is our resultant vector r bar, which is equal to a bar plus b bar. Am I right? Okay. So we just do this kind of things. You know that. Okay. This is our resultant vector, which is nothing but diagonal, of parallelogram. Similarly, let's say theta will be the angle between these two vectors. This is our theta. And by angle between two vectors, you know that if two vectors are arranged in a combination of head or tail, we can measure the angle. Here also, tail combination, you can observe tail combination between a bar and b bar, so that this whole angle will be theta. And let's say this angle is a beta 1. Okay. So theta is the angle between a bar vector and b bar vector, and beta 1 is the angle between vector A and resultant. To showing the direction, okay, to giving the direction of resultant vector, we always use angle concept. यानी कि बेसिक वेक्टर और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनके बीच में जो भी एंगल रहेगा वो उसका डायरेक्शन बताता है. इसका मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है अपना r बार, a बार और b बार का, इट इज एट एंगल ऑफ बीटा 1 फ्रॉम a बार, यानी कि a बार से बीटा 1 इतने एंगल पे आपको रिजल्टेंट वेक्टर r बार मिलेगा. ये उसका डायरेक्शन बताता है. By triangle law or by parallelogram law, you know that this r bar, which is nothing but sum, यानी एडिशन का रिजल्टेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, you know that it is a square plus b square plus 2ab cos theta. How it comes? You know that. If you don't know, then go to the previous lecture 5, 4, 5, 6. You can definitely get the point. Okay. So plus 2ab cos theta. Where theta here, this theta is the angle between. This is the angle between a bar and b bar. This is a very important concept. You should know what is theta. थीटा को क्या है आपको पता होना चाहिए. जो थीटा है वो a बार और b बार के बीच में से एंगल है, और जो बीटा 1 है वो a बार और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है. ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ सम, यानी कि एडिशन का रिजल्टेंट है. ओके. तो सिमिलरली हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है. तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा, डायरेक्शन यहां पे लेते हैं, डायरेक्शन जो रहेगा, डायरेक्शन ऑफ सम यानी कि एडिशन का डायरेक्शन, वो लेट्स से tan बीटा 1, tan एंगल लेते हैं, tan बीटा 1. सो यू नो दैट इट इज b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा. ओके. ये कभी चेंज नहीं होगा. ओके. सो tan बीटा 1 इज b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा. बीटा 1 बताता है कि जो रिजल्टेंट है एडिशन का, इट इज एट एन एंगल ऑफ बीटा 1 फ्रॉम ए बार. ये बात तो आपको पता है, ये दोनों बात आपको पता है. ओके. सो लेट्स गो फॉर subtraction now. If this is a b bar vector, okay, this is a b bar vector, then definitely this vector will be minus b bar. Am I right? Okay. I have already told you that if b bar is the vector, then minus b bar will be exactly opposite vector with the same magnitude. So this magnitude is equal to this magnitude. This is the minus b bar. Here we have a bar vector. Here we have minus b bar vector. So definitely we can measure this angle as angle between two vectors. So if this is the theta, then what will be this angle? So this angle will be 180 minus theta. Listen carefully. If this is theta, you know that this is 180. If this is theta, then this angle will be 180 minus theta. So according to parallelogram law, let's just make some changes. Okay, let's just make some changes. So this is a bar, this is minus b bar. Here we have two vectors again. Okay, tail with tail combination is there. Then definitely this is our new resultant. And this resultant is of difference, which is equal to a bar minus b bar. This is equal to a bar minus b bar. So this is our a bar. Actually parallelogram law we use for addition, you know that. So we can represent this a bar minus b bar as a bar plus minus b bar.
Okay, that's what I am saying at the start of lecture. You can represent subtraction a bar minus b bar in terms of addition, यानी कि a bar minus b bar जो subtraction है उसे हम addition के तौर पे भी represent कर सकते हैं by using parallelogram law. This is the resultant, new resultant which indicates subtraction of a bar and b bar. एक्चुअली ये एडिशन के तौर पे है क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा a बार और यहाँ पे अपना माइनस b बार है, तो a बार और माइनस b बार को हमने ऐड किया यहाँ पे. ओके, सो दिस विल आल्सो गिव द रिजल्ट ऑफ a बार माइनस b बार. ओके, व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस, which is result of difference. Are you getting this point? Okay, so this is, let's say, 180 minus theta, so we will say this angle will be beta 2, beta 2, this angle is beta 2. This is a bar, so resultant यहाँ पर है, तो हमें बताना होगा कि रिजल्टेंट कितना एंगल पर है a से, तो a से लेट्स से बीटा 2 पे, क्योंकि यहाँ पे हमने बीटा 1 ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है, दैट्स व्हाई लेट्स से दिस एंगल इज बीटा 2. ओके, so you got the information how to represent subtraction of two vectors in terms of addition of two vectors. यानी कि दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करना है तो उसे एडिशन के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने सिंपली क्या किया, b बार को माइनस b बार में कन्वर्ट किया. b बार के एग्जैक्टली अपोजिट में सेम मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर रहेगा वो रहेगा माइनस b बार, अपना a बार जैसे का वैसा ही है. तो रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम विल बी a बार प्लस माइनस b बार, क्योंकि पैरेललोग्राम हम एडिशन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है, a बार का और माइनस b बार का, वो रहा एडिशन. अभी रिजल्टेंट कितने एंगल पर है a बार से वो भी बताना पड़ेगा, तो ये एंगल को हमने मेजर किया एज अ बीटा 2. ये एंगल अपना पहले से थीटा दिया हुआ है, सो अगर ये थीटा है तो ये रहेगा 180 माइनस थीटा, बिकॉज टोटल एंगल इज 180. ओके, जस्ट नोट डाउन द डायग्राम. ओके, सो आपको डायग्राम तो समझ में आ गई. ये जो रिजल्ट है ये है एडिशन के, ये हमने ट्रायंगल लॉ और एंड पैरेललोग्राम लॉ में भी देखे हुए. सम का जो रिजल्टेंट है, एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो a बार प्लस b बार प्लस 2ab cos थीटा रहता है स्क्वायर रूट में, और उसका डायरेक्शन जो रहेगा यहाँ पे एंगल कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा व्हाटएवर इट इज. इस डायग्राम में हमने बीटा 1 रिप्रेजेंट किया, और ऑलवेज ध्यान में रखो कि बीटा 1 जो भी एंगल रहेगा रिजल्टेंट का, वो रिजल्टेंट आपका एट व्हाट एंगल फ्रॉम a बार वेक्टर, a बार वेक्टर से कितने एंगल पे, a बार वेक्टर से कितने एंगल पे आपका रिजल्टेंट है वो दिखाता है बीटा 1. ओके, वो डायरेक्शन बताता है. सो सिमिलरली अपन डिफरेंस का भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं. सो फॉर दैट वी हैव हियर सेम फार्मूला, a बार प्लस b बार प्लस 2ab cos. now the change is here. Okay, the important change, theta was the angle between a bar and b bar, a bar and b bar. थीटा a बार और b बार का एंगल था, बीच में से एंगल था. ओके, दैट्स व्हाई वी टुक हियर बिट थीटा. सो व्हाट एंगल वी शुड टेक हियर, व्हाट एंगल वी शुड टेक हियर, बिकॉज ये जो डिफरेंस का रिजल्ट है ना वो a बार और माइनस b बार के बीच में से है, तो हमें एंगल भी यहाँ पे a बार एंड माइनस b बार के बीच में से लेना पड़ेगा, जो कि a एंगल है, जो कि है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा. दैट्स व्हाई वी टुक हियर एज एंगल 180 माइनस थीटा. जिनको अभी नहीं समझ आया कि 180 माइनस थीटा कैसे आया, देखो ये था थीटा, और ये अपना जो लाइन है पूरा का पूरा, इसका पूरा एंगल रहेगा 180. सो 180 में से अगर ये थीटा हमने रिड्यूस कर दिया तो वो अपना एंगल मिलता है, दैट्स व्हाई 180 माइनस थीटा. सो दैट विल बी इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस 2ab. सो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस, यहाँ पे 180 तो चेंज तो नहीं होगा, cos ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव रहता है, सो cos क्या रहेगा, नेगेटिव, सो इट बिकम माइनस cos थीटा. सो दैट विल अल्टीमेटली गिव अस रिजल्ट ऑफ a बार प्लस b बार माइनस 2ab cos थीटा. दिस इज द रिजल्ट ऑफ resultant magnitude of subtraction or difference, we can say. Okay, this is the result. In a square root a square plus b square minus 2ab cos theta. Just keep in mind here we have sign minus 2ab cos theta. For addition we have a square plus b square plus 2ab cos theta in a square root, but for subtraction we have a square plus b square minus 2ab cos theta in a subtraction. Okay, that's it. And here now theta is the angle between a bar and b bar. Here angle was in between a bar and minus b bar, we converted it into
A bar and B bar. That's very easy. You have to go stepwise. Okay, this is the resultant now, magnitude. Now we have to find angle as well, यानी means direction as well कि resultant का direction कहाँ पर है. तो ये देखो resultant का direction का जो formula यहाँ पर है tan beta 1. So यहाँ पे tan beta 2 लेंगे हम. अभी आपने डायग्राम तो निकाल लिए, आपको पता है कि ए बार एंड माइनस बी बार बोल रहा हूं, ए बार एंड माइनस बी बार के बीच का जो एंगल लिया है हमने वो क्या लिया है 180 माइनस थीटा, और अपना रिजल्टेंट कहां पर है ए बार से बीटा 2 एंगल पे. जो नीचे का स्लॉट है दो डायग्राम निकाला है हमने, नीचे के स्लॉट में बीटा 2 लिखा है देखो, तो बीटा 2 इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड रिजल्टेंट. सो इफ वी हैव हियर b sin थीटा, b sin थीटा, नाउ हियर वी हैव थीटा for a bar and b bar for addition, for sum के लिए a bar and b bar के बीच का है, डिफरेंस के लिए a bar और माइनस b bar के बीच का जो रहेगा एंगल वो कितना है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा. सिमिलरली यहाँ पे a प्लस b cos थीटा, b cos थीटा विल बी 180 माइनस थीटा आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं जो वो डिफरेंस का है, डिफरेंस का है, यहाँ पे एडिशन का था. तो इट विल बिकम b sin 180 minus theta, 180 है तो sin ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. सो 180 minus theta will be second quadrant, so sin will be positive sign, therefore b sin theta as it is divided by a minus b cos theta. अभी मैंने यहाँ पे बताया कि cos 180 minus theta यानी कि minus cos theta. So this is the direction of resultant, this is the direction of resultant. यहाँ पर दे सकते हैं कि समेशन का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है समेशन का वो b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, प्लस साइन यहाँ पे, और सब्सट्रैक्शन वाला जो है डिफरेंस वाला जो है वो b sin थीटा a माइनस b cos थीटा है. ओके, सो वेरी इजी, इट वाज वेरी इजी. बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इतना ही ध्यान में रखने का है कि जो एडिशन का रिजल्ट है मैग्नीट्यूड का वहां पे प्लस साइन है प्लस 2ab का, और डिफरेंस का है वो माइनस 2ab है. सिमिलरली डायरेक्शन बताते टाइम डायरेक्शन किसका बताएंगे रिजल्टेंट का, तो समेशन का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन आप यहाँ पर b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, और सब्सट्रैक्शन का जो है वो है b sin थीटा डिवाइड बाय a माइनस b cos थीटा. दोनों में से एक रिजल्ट ध्यान में रखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, और सब्सट्रैक्शन का कोई पूछेगा तो बस साइन चेंज करने का, दैट्स इट. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन. ओके, नोट इट डाउन. Okay, so in a previous part, that is in a part 8, I have given one quiz to you, और उसका सबने आंसर जो बताया था वो बताया था कि रिजल्टेंट r is equal to f, सबने बताया था r is equal to f. कमेंट बॉक्स में मैंने सबको सही सही बोल दिया था, लेकिन वो एक टाइप का ट्रैप था आपके लिए, ट्रैप था, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था सब्सट्रैक्शन का. दैट्स व्हाई आई डिडंट से रॉन्ग एनीबॉडी, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग इन दैट क्वेश्चन, इन दैट क्विज, बिकॉज आपने जो रिजल्ट निकाला है ना वो नीचे वाला निकाला था. लेट्स से these are the two vectors f1 and f2. So here we have to make some adjustment. This is our 60 degree and they have asked for this resultant. So this will become minus f1. Okay, क्विज में क्वेश्चन दिया है हमने, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 120 डिग्री. तो अब रिजल्टेंट ये वाला लेना है, क्वेश्चन कुछ इस तरह ही है. सो रिजल्टेंट ये वाला लेना है, तो अभी जो हमने सीखा वही हम यूज कर सकते हैं. तो ये जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, डिफरेंस का रिजल्टेंट है, डिफरेंस का रिजल्टेंट है एक्चुअली. सो यानी कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू f1 और माइनस f1 और f1 बार प्लस और माइनस f2, ऐसा भी ले सकते हैं. दिस इज लेट्स से f1, दिस इज f2, दैट मींस दिस फोर्स बिकम माइनस f2. ओके, सो इसका जो रिजल्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा अंडर रूट a square plus b square minus 2ab cos थीटा. ओके, क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि रिजल्ट कौन सा वाला निकालना था. सो दैट इट विल बिकम लेट्स से बोथ आर f फोर्सेस f square plus f square minus 2 into f square cos 120 degree, or we can take as it a 180 minus 60, 180 minus 60. Are you getting it? So f square plus f square 2f square minus 2f square, and this will become minus cos 60. Okay, just note it down. Okay, just note it down.
ओके, तो यहाँ पे देख लो रिजल्टेंट जो रहेगा जो कि डिफरेंस का है उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 2f² माइनस 2f² और cos ऑफ -60 जो रहेगा ना वो माइनस साइन बाहर आके यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस बाहर साइन ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस बन गया और cos 60 की जो वैल्यू रहती है 1/2 रहती है, सो 2 to 1, सो इट विल बिकम √3f², सो दैट आंसर इज √3 और यहाँ पे f बाहर। सो ये आंसर था, सबने r इज इक्वल टू f दिया है, सबने दिया है f, लेकिन आंसर है √3f। लेक्चर दैट इज क्विज, सो इट इज अ क्विज पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन ऐसा है कि द रिजल्टेंट ऑफ p बार एंड q बार इज r बार, यानी कि p बार और q बार ये जो दो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट है r बार। नाउ इफ q बार इज डबल्ड, यानी कि q बार को अगर डबल कर दिया, q बार को ट्वाइस q बार कर दिया, उस टाइम पे रिजल्टेंट जो रहेगा r बार इज डबल, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है p बार एंड q बार वो एडिशन का है, क्योंकि वहां पे कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं बताया तो उसको एडिशन का रिजल्टेंट लेना है। उसके बाद फर्स्ट केस है अगर q बार को हम ट्वाइस q बार करते हैं उस टाइम रिजल्टेंट डबल हो जाता है, यानी कि r बार विल बिकम 2r बार। व्हेन q बार इज रिवर्स, दिस इज सेकंड केस, when q bar is reversed means q bar will be equal to minus q bar, okay, यहाँ पे आ गई सब्सट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट, r bar is again doubled, okay, so अगर q bar को minus q bar करते हैं तो उस टाइम पे भी रिजल्ट क्या होता है, डबल हो जाता है, okay। आफ्टर दैट फाइंड p² as to q², यानी कि आपको मैग्नीट्यूड का रेशियो लेना है, यानी कि p बार वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, q बार का मैग्नीट्यूड निकालना होगा और उनका रेशियो लेना है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके q का स्क्वायर करना और उनका रेशियो क्या है बताना, ओके। तो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट टाइम की तरह कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन नहीं आते जेईई और नीट में, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दे आर यूज्ड, सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट आर यू सॉल्विंग, ओके। सो और इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ओके। सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर please comment, like, share and subscribe, also press the bell icon, and thank you for listening me. Be safe and take care. Thank you.